ویلکم بیک۔ شہر نامے میں آپ کو خوش آمدید کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دعوت اسلامی پاکستان کے مولانا عثمان رضا اتاری کی ڈیرہ غازی خان آمد ہوئی، جبکہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ان کا شاندار استقبال کیا گیا، پھولوں کا گلدستہ اور سرائی کی اجرک پہنائی گئی۔ مزید دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی پاکستان کے شعبہ میڈیا کے نگران مولانا عثمان رضا اتاری کی پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن آفس آمد، صدر جنوبی پنجاب شیخ رمضان ندیم نے انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور روایتی سرائکی اجرک پہنائی۔ اس موقع پر پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے دیگر دوست، جن میں شاہد حسین راجپوت، فواد چنگوانی، ملک ایاز قادر کھوکر، زبیر لودھی، عبداللہ خوسا، ناصر بٹی، سلیم چوہان، عدنان اشفاق و دیگر بھی موجود تھے۔ ان کے ہمراہ ڈویژنل میڈیا نگران شیخ جشان، ضلعی نگران نور لغاری و دیگر بھی دعوت اسلامی کے عہدیداران تشریف لائے۔ دعوت اسلامی کے جناب مولانا عثمان اتاری صاحب جو تشریف لائے اور جو کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، جو ہر دفتر پہ جا کر پیغام پہنچا رہے ہیں مولانا علی قادری اور دعوت اسلامی کا، یہ جہاد کر رہے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم دعوت اسلامی کے ہر اس اچھے کام کے بلکہ سارے اچھے کام ہیں۔ ندیم صاحب کی زیر قیادت تمام میڈیا کے پرسنز یہاں موجود ہیں۔ میں عثمان بھائی سے کہوں گا کہ سب کچھ آپ بیان کریں گے اس جاتے ہوئے الوداعی تقریب۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اور بہت پیار محبت سے جیسے شیخ صاحب اور ان کی ٹیم نے ہمیں وہ ویلکم کیا۔ انشاءاللہ بہت جلدی ہم بھی ان کو انشاءاللہ دعوت دی ہے۔ انشاءاللہ آپ کبھی اس طرح تو نہیں کر سکے جیسا آپ نے کیا، لیکن کوشش کریں گے اس طرح ہی آپ کے استقبال کریں انشاءاللہ بہت جلدی دعوت دیں گے۔ ہم زیادہ کرتے ہیں عثمان صاحب کا کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ ہم نکمے لوگ ہیں اور اگر کچھ دیر ہم نے دین کے لیے اور دعوت اسلامی کی طرف سے کوئی اچھے پیغام کو سمجھ لیا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور ہمارے تمام صحابی بھائیوں کا شکریہ کہ خبر دیتے چلیں آپ کو خانیوال سے، جہاں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی ہدایت پر موٹر سائیکل اور لوڈر رکشوں کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ اتھارٹی خانیوال میں اسپیشل رجسٹریشن کاؤنٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عامر نصیر سے۔ عامر، تفصیلات بتائیے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر وسیم محمد سندھو، سیکرٹری RTA ہینا رحمان کی جانب سے موٹر سائیکل اور لوڈر رکشوں کے خلاف جو ہے وہ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ سیکرٹری خانیوال اتھارٹی میں جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ مجھے سیکرٹری RTA ہینا رحمان سے انتظار ہے۔ جی میڈم بتائیے گا، موٹر سائیکل اور رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا، کیا کر جائیں گے اس بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں یہ ہے کہ جو موٹر سائیکل رکشاز تھے جو ایلیگلی آپریٹ ہو رہے تھے، اس وقت ان کو قانون کے دائرہ کار میں لانے کے لیے ان کا جو نئی قانون سازی ہوئی ہے اس کے مطابق ان کو عارضی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ سیکرٹری RTA آفس سے ملے گا۔ لہٰذا سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ اب خود جو ہے ہمارے دفتر رابطہ کریں۔ ہر طرح کا جو معلوماتی کاؤنٹر ہے، باقی کاؤنٹر بھی ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں، ان کو فلی گائیڈ کیا جائے گا۔ کمپیوٹرائز ایپ موجود ہے جس میں ہم ان کا ڈیٹا اپلوڈ کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سیم ڈیٹ میں ہی جو ہے ان کو رجسٹریشن جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے گاڑیوں کا فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے اور پرماننٹ رجسٹریشن حاصل کرنی ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے۔ اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے اب ان کو رعایت دی گئی ہے، 4 مہینے کا ٹائم ہے ان کے پاس۔ اگر اس 4 مہینے میں یہ خود ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کا ہم اسموتھلی جو ہے رجسٹریشن کریں گے۔ ادروائز آفٹر جو 4 منتھس کا ٹائم یہ اوور ہو جائے گا، اس کے بعد ان کا جو وہیکل کمپلیٹلی آف روڈ کر دی جائے گی۔ رحمان کا یہ کہنا تھا کہ سیکرٹری RTA کے آفس میں رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کو چاہیے اپنی موٹر سائیکل اور رکشوں کی جو ہے رجسٹریشن کروائیں۔ جی، محکمہ زراعت کے آفیسرز ڈپٹی کمشنر بہاڑی سید آصف حسین شاہ کا کہنا تھا کہ لڈن شہر میں محکمہ زراعت کے کھاد کی دستیابی کو یقینی بنانے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے اور کسانوں کو کھاد فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ضلع بہاڑی لڈن کے شہر میں کسانوں کو کھاد مہیا کرنے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے۔ محکمہ زراعت کے افسران ڈپٹی کمشنر بہاڑی سید آصف حسین شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زراعت ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم اپنے کسان بھائیوں کے مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور کھاد کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔
मीरपुर खास PS 45-1 पर एक बार फिर मचे हुए सियासतदान साबिक सेनेटर और सूबाई वजीर हरी राम किशोरी लाल को पीपल्स पार्टी की जानिब से टिकट जारी कर दिया गया है। नामजद उम्मीदवार हरी राम का कहना था कि दोबारा मुंतखब होकर अवाम की खिदमत के कामों के तसलसल को यूं ही जारी रखा जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उवैस रजा। के चौथे बड़े शहर मीरपुर खास की PS 45 की निशिस्त पर इस बार सियासी जमातों के दरमियान कांटेदार मुकाबला दिखाई दे रहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बार फिर टिकट हरीराम किशोरी लाल को दिया गया है। हरीराम किशोरी लाल का कहना था कि मैंने पहले भी बिला रंग व नस्ल जबान मजहब के अवाम की खिदमत की है और अब भी वो खिदमत जारी रखूंगा। मैं विदाउट डिस्क्रिशन, उर्दू स्पीकिंग हो, पठान स्पीकिंग हो, किसी जमात से हो, किसी जात से हो, उसको मेरा अगर ये MQM का इसको पानी दूं और ये पीपल्स पार्टी, ये मेरा विदाउट डिस्क्रिशन सबको इक्वल काम करता। हरीराम किशोरी लाल जिनके अदवार में शहर मीरपुर खास में अरबों रुपए के नाला प्रोजेक्ट, बाईपास रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर सेहत और दीगर प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंचे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जो 10 नुकात प्रोग्राम है उसके तहत हम चैंपियन चलाएंगे। रोजगारी के हवाले से हारियों के कार्ड बनाने के लिए ये मकसद ये है। मैन जो है बेनज़ीर कार्ड तो ऑलरेडी शहीद का चल रहा है। उसके साथ मैं डिवीजन हेडक्वार्टर में जाते हुए अपना NID हॉस्पिटल चाहता हूँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी चाहता हूँ, वाटर सप्लाई का ऑलरेडी मैंने काम एक की है, सारी स्कीम कंप्लीट की है और काफ़ी मैंने बेशुमार काम किए हैं जिसमें आप देख लो ईदगाह साईं को पता है, हार पाले जी वो भी मैंने तमीर कराई थी, उनके हवाले फंड किए थे। भाई आप खुद बनवा, वहाँ 5 फुट खड्डा होता था, नमाज नहीं पढ़ सकते। उसके बाद सतले टानवानी मैंने बनवाई। फिर हमारे दोस्त होते थे DIG यूसुफ सही, उसने बोला सांगर में, मैंने सांगर में ईद बना के दी। इधर मैंने मक्खन समूह में ईदगाह बना के दी। इस हिसाब से काफ़ी ईदगाह और इमाम बारगाहें बनाई हैं। मक्खन समूह ये वो तकरीबन शहर की जितनी भी इमाम बारगाह में मैंने काम किया है। अब देखना यह है कि इस बार शहर की अहम निशिस्त पर हरीराम किशोरी लाल अपने 5 साल कारकर्दगी पर दोबारा मुंतखब हो पाएंगे या नहीं। अवैस रजा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। कश्मीर के हल्का PS 4 के आज़ाद उम्मीदवार मंजूर खान खोसो की नेशनल प्रेस क्लब कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर आज़ाद उम्मीदवार मंजूर खोसो ने पिछली हुकूमत में मुंतखब नुमाइंदों को आड़े हाथों लिया। मंजूर खान का कहना था कि 20-20 साल इक़्तिदार का मज़ा लेने वालों ने कभी गरीब आवाम के लिए काम नहीं किया। ज़िला कश्मीर की आवाम रोज़ाना इग़वा हो रही थी, मगर गुज़िश्ता मुंतखब नुमाइंदों ने एक बार भी ऐवानों में बदअमनी पर बात नहीं की। कश्मीर की आवाम को बेयारो मददगार छोड़ा गया। बारियां लेने वालों का वक्त ख़त्म हो गया। आवाम आजमाए हुए चेहरों को छोड़कर नए चेहरे को वोट दें। वोट का सही इस्तेमाल ही करप्शन, इग़वा इंडस्ट्री के खात्मे का वाहिद हल है। जमहूरियत में इलेक्शन लड़ना हर शहरी का जमहूरी हक है। मैं भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। आवाम मेरे हाथ मजबूत करे। मैं सिस्टम के खिलाफ बगावत करके खड़ा हूँ। मैं कश्मीर की आवाम की उम्मीद बनकर मैदान में खड़ा हूँ। नुशैर फ़िरोज़ की तहसील बड़िया सिटी में वाटर सप्लाई स्कीम को पूरे 17 साल गुजर गए मगर शहरियों को साफ पानी ना दे सके। वाटर सप्लाई स्कीम को 3 साल में मुकम्मल करके शहरियों को साफ पानी फराहम करना था, मगर बदकिस्मती से इस स्कीम को भी करप्शन की नज़र लग गई है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फ़कीर हुसैन। फ़कीर हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट नुशैर फ़िरोज़ की सबसे बड़ी तहसील में। इस तहसील का सबसे बड़ा बदकिस्मती से मसला ये है कि यहाँ के जर का जो पानी है वो जहर बन चुका है, जिसके पीने के बायस जो है लोगों में हेपाटाइटिस C, हेपाटाइटिस B और स्किन की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उससे तफसीलात लेंगे कि क्या मसला है। इस प्रोजेक्ट को जो है 17 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर गया लेकिन ये लोगों के काम में ना आ सका है। जी हमें बताएँ कि ये क्या मसला है, आखिर क्या सबब है, आपको क्या लगता है? मैं पहले तो मेट्रो TV न्यूज़ का जो है बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतने बड़े मसले को हाईलाइट किया है। मैं आपको बताऊं कि 2008 में इसकी जो है ना इसकी जो मंजूर हुई थी
उनको 3 सालों में इसकी मुकम्मल करनी थी। आज इसको 16 से 17 साल गुजर गए हैं, पर अभी तक यहाँ के आवाम की नाशुक्री है जो ये इसकी मुकम्मल ना हो सकी, जिसके बायस यहाँ के जो हॉस्पिटल में आप केस देखेंगे हेपाटाइटिस सी के, हेपाटाइटिस बी के, वो 200 से ज़ायद हैं और उनमें कितनी जो है ना जानें भी जा चुकी हैं। और सिंध हुकूमत यहाँ इसे नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये इतने टैक्स देने वाला जो यहाँ का 10,000 से ज़ायद अवाम है वो कहाँ जाएगा। और मैं आपको यह भी बताऊँ कि ये जो स्कीम वाटर सप्लाई की ये नहीं अभी तक फ़ाल हो चुकी है। इसकी वजह से यहाँ के जो शहरी है अपनी मदद आप तक जो लगाए गए हैंड पंप हैं और मोटर हैं जो रोडी कैनाल पे लगाए गए हुए, वो उनसे जो है ना पानी भर के और घरों तक लेके जाते हैं। उनके लिए भी उनको बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। जी, यहाँ के शहरियों का यही मुतालबा था निगरान हुकूमत सिंध और पाकिस्तान से कि इस प्रोजेक्ट की जो है हाई लेवल की इंक्वायरी करके यहाँ पे एक मिशन के हिसाब से जो लोगों को सहूलत फराहम की जाए। जी, मीरपुर खास के हल्का ने 212 और 211 के आज़ाद उम्मीदवार साबिक MNA सैयद अली नवाज शाह का पावर शो मीरपुर खास से नोकोट तक हज़ारों अफराद ने इस्तकबाल किया। हल्का ने 211 और 212 PS 47 से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले आज़ाद उम्मीदवार सैयद अली नवाज शाह ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सैयद अली नवाज शाह ने मीरपुर खास से नोकोट तक सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफ़िले के हमरा रैली निकाली, जबकि रैली में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। सैयद अली नवाज शाह की रैली मीरवा गोरचानी डिग्री झंडों से होते हुए नोकोट पहुंची, जहां कारकुनों ने गुलपाशी करके फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। इस मौके पर सैयद अली नवाज शाह का कहना था कि मैंने गुज़िश्ता इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से कामयाब होकर अपने हल्के की आवाम की बिला किसी रंग व नस्ल और मज़हब की खिदमत की। उन्होंने कहा कि हमारी अवामी खिदमत को देखते हुए मुखालिफिन बौखलाहट का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि अवाम 8 फरवरी को ताले पर मोहर लगाकर मुखालिफिन की ज़मानत रद्द करवा देंगे। इस मौके पर चौधरी अशरफ फराई, यासीन बलोच चौधरी, अल्लाह लोग गुल, हाजी अली अहमद गोरशानी, राना खालिद आलम, राना इरफान जफरियाब, सरदार खमीसो गोरशानी और दीगर भी मौजूद थे। जैकबाबाद में पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम कैंप में जियाले इंतखाबात की तैयारियों में मशगूल है। जैकबाबाद पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम तेज़ कर दी है, जबकि कौमी नशस्त N190 PPP उम्मीदवार एजाज हुसैन जाकरानी और सूबे नशस्त PS1 के उम्मीदवार हाजी शेर मोहम्मद मुगीरी की क़यादत में ज़िला इलेक्शन मुहिम कैंप पे आमद। पीपल्स पार्टी के बल्दियाती कौंसलर समेत दीगर सियासी सीनियर रहनुमाओं से इंतखाबात के मुतालिक मुश्तरका इजलास का इनेकाद हुआ। जियाले पुरजोश नज़र दिखाई, जबकि GA भुट्टो और GA एजाज जाकरानी और GA शेर मोहम्मद मुगीरी के नारे लगाएं और कहा कि 8 फरवरी को तीर चलेगा और तीर ही जीतेगा। टंडो मोहम्मद खान में कराची के बाद सिंध के दूसरे NICVD अस्पताल में फौलिज का मुफ्त इलाज शुरू कर दिया गया। 6 घंटों में अस्पताल पहुंचने वाले मरीज का फौरी ऑपरेशन किया जाए और मरीज की जिंदगी भर की माजूरी से उसको बचाया जाए। डॉक्टर जावेद अकबर सियाल, डॉक्टर इरफान रूफी, डॉक्टर गजनफर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि NICVD अस्पताल टंडो मोहम्मद खान में भी फौलिज प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। NICVD अस्पताल टंडो मोहम्मद खान सिंध का दूसरा अस्पताल है जहां फौलिज का मुफ्त इलाज किया जाएगा। अस्पताल 24 घंटे काम करेगा और 6 घंटों के अंदर अंदर अगर मरीज़ को अस्पताल पहुंचा दिया गया तो मरीज़ का फौरी ऑपरेशन करके ऐसे ज़िंदगी भर की माजूरी से बचा लिया जाएगा। मुल्क भर में रोज़ाना 1000 अफराद फौलिज के मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि NICVD अस्पताल में फौलिज प्रोग्राम सिंध हुकूमत के मुकम्मल ताउन से शुरू किया जा रहा है और तमाम तर फंड सिंध हुकूमत ही फराहम कर रही है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी फौलिज प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। हैदराबाद के इलाके पक्का किला में मुकीम अफराद फोर्ट पंपिंग स्टेशन के मुलाजमीन की मुजरिमाना गफलत के बायस पानी में डूब गए हैं।
इलाके के तमाम घरों में घंटों घंटों पानी खड़ा है, जबकि इलाका मकीनों का कहना है। बता रहे हैं हैदराबाद से इमरान खान अपनी इस रिपोर्ट में। हैदराबाद का इलाका पक्का किला फोर्ड पंपिंग स्टेशन के मुलाजमीन की गफलत के बाइस कई फुट पानी में डूब गया। इलाके के तमाम घरों में घुटनों घुटनों तक पानी खड़ा है। आए दिन की मुसीबतें, पानी भर जाता है, 2-3 फीट खड़ा हुआ होता है, गलियां हमारी बेकार हो रही हैं। कल रात को तो ऐसे वाल खोले गए कि पानी टंकियों में से गिरा है बाहर और घरों के अंदर पहुंचा है वो पानी। और गलियां देख लें आप आगे, पूरी की पूरी गीली कच पड़ी हुई है, पानी घुटनों घुटनों खड़ा हुआ था। सुबह पीने का साफ पानी लोगों को दस्तयाब नहीं है, मगर यहाँ पर पक्के किले के नालियों में बह रहा था कल रात को पानी। लोगों का कहना है कि फोर्ड पंपिंग स्टेशन के मुलाजमीन रात भर पंप चलाकर छोड़ देते हैं और टंकियां इतनी भर जाती हैं कि ओवरफ्लो होना शुरू हो जाती हैं। टंकियां ओवरफ्लो होने की वजह से पानी इर्द गिर्द के तमाम घरों में जमा हो जाता है। इतना पानी भर रहा है हमारे घरों में, हमारे बिस्तर सब खराब हो गया। 5-6 महीने से हमारे घरों में पानी भर रहा है। हम किधर लेके जाए अपने बच्चों को? गरीब इंसान तो मर गया। तमाम टंकियों का लीकेज दीवारों की तरफ जाता है और दीवारें गिरती हैं। अब इन लोगों की शायद पॉलिसी ये है कि मकानों की दीवारें भी गिर जाए गरीबों की। घुटनों घुटनों घरों के अंदर पानी खड़ा हुआ है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। टंकियों में जाते हैं तो वो कहते हैं भाई ड्यूटी वाले सो जाते हैं रात को मशीन चालू करके, और टंकी पूरी रात गिरती है। शहर के अंदर पीने का पानी नहीं है और यहाँ ज़ाया किया जा रहा है बुरी तरीके से पानी को। पक्का किला के मकीनों का कहना है कि शहर भर में पीने के पानी की शदीद किल्लत है और फोर्ड पंपिंग स्टेशन में पीने का पानी ऐसे जाया किया जा रहा है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA की जानिब से हेस्को से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम ओहदेदारों का इजलास लेबर हॉल हैदराबाद में मुनक़िद किया, जिसमें मरकज़ी सदर अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि यूनियन की काविशों से अब तक बीमार और रिटायरमेंट के नज़दीक मुलाजमीन के तबादले वापस करवाए जा चुके हैं, जबकि 36 यूनियन ओहदेदारों के तबादले और दीगर मुलाजमीन के तबादले होना बाकी हैं, जिसके लिए यूनियन मुसलसल जिद्दोजहद और इंतज़ामिया से मुज़ाकरात को जारी रखे हुए है। इस वक्त हेस्को को 5,500 से ज़ायद मुलाजमीन की कमी का सामना है। इस मौके पर स्टेज पर सूबाई सेक्रेटरी इकबाल अहमद खान, आज़म खान और दीगर भी मौजूद थे। इजलास में हैदराबाद के अलावा काजी अहमद, मटियारी, ठट्टा, सजावल, जामशोरो कोटरी, सेवन शरीफ, गुलारशी, बदीन, तलहार, मातली, मीरा, टंडो मोहम्मद खान, टंडो एलायार, टंडो जाम, मीरपुर खास, सोमारो, डिग्री, नोकोट, उमरकोट, सांगड़, खिपरो, टंडो आदम, शहदादपुर, नवाबशाह, शाहपुर, चाकर, दौड़, दौलतपुर, हाला, सईदाबाद और सकरंड के नुमाइंदगान ने भरपूर अंदाज में यूनियन की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में अटक बार की तारीख में पहली बार खातून उम्मीदवार फरजाना राजा एडवोकेट सदर और मलिक मोहम्मद उस्मान एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है, जबकि खातून उम्मीदवार रिजवाना राजा एडवोकेट 245 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गई, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल राना इस्तफाद अली फाजी 212 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मलिक उस्मान एडवोकेट 223 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी मलिक रब नवाज हयात एडवोकेट 230 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि मुंतखब होने वाले सदर और सेक्रेटरी बार को वकला की जानिब से मुबारकबाद और जीत की खुशी में हामी वकला ने ढोल की थाप पर रक्स किया और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। वक्त हो गया है एक ब्रेक का।